Yes, for your reference, I wrote the topics covered by you till now. We started with the debentures, we discussed its meanings, its feature, we compare it with bonds, right? Then we discussed about the types of debentures which are important from examination point of view as well. Then we directly proceeded towards the numerical portion of the chapter, whereby we discussed that the debentures can be issued at par, means face value pay. When the companies decide to raise the debentures at more than the face value, we call it, it is raising it at premium. And when the companies raise the debentures at a price lesser than the face value, we call it issue of debentures at discount. और इसके बारे में आपको एक बात समझाई है, whenever you are issuing your debentures at discount, you need to write it off. Without pick, I will not be answering anyone's question, right? So whosoever wants to ask a question in between the class, firstly switch on your video, right? Or paste your pick. So as Sukhmani raised hand, I will not be taking any type of risk, right? As the unauthorized entries, they used to come in my class, so I will not be allowing anyone to unmute themselves, right? So I was telling you, discount on issue of debenture can either be named as loss on issue of debenture. जितनी जल्दी हो सके इसे राइट ऑफ करना है. पहली प्रायोरिटी क्या होगी? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अगेंस्ट राइट ऑफ करना है. सेकंड प्रायोरिटी कैपिटल रिजर्व के अगेंस्ट राइट ऑफ करना है. अगर दोनों के बैलेंसेस कम है या इनसफिशिएंट है टू राइट ऑफ द फुल अमाउंट ऑफ योर डिस्काउंट ऑन इशू, देन यू विल बी पुटिंग द डिफरेंस टू योर स्टेटमेंट ऑफ P&L. And we will be writing off discount. Either we call it discount or we call it loss on issue of debentures. Done? So this thing you have to keep in your mind. Then we discussed, as we were doing these two cases in our share capital chapter, one is oversubscription, another is under subscription. So whenever you raise the debenture less in a number, means you issue the debentures less in number and you get the applications more than your issued debentures, that will be the case of oversubscription and thereby you used to apply pro rata. इसके केसेस हम लोगों ने कर लिए हैं. अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में नीड नॉट टू वरी, आपने इशू डिबेंचर्स कम किए, सॉरी ज्यादा किए, लेकिन आपको एप्लीकेशंस कम आई, वहां पे कोई 90% की मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कोई रूल नहीं है. As and when you are getting the applications, you will be issuing the debentures to them. So till now the cases were very simple. I think now he will be proceeding issue of debenture for a purchase consideration other than cash. और वो भी केस हम लोगों ने शेयर कैपिटल में किया होता है. Yes, I was right. ESBA we will be discussing at the last. और वो कोई डायरेक्ट हमारे सिलेबस में है भी नहीं. So issue of debentures for a purchase consideration other than cash. चलिए डिस्कस करते हैं with the help of a story. We will be making a story here. I will be framing a case in front of you and then I will be discussing the case. And let me write the name of the topic we are going to pick today. Issue of debentures for purchase consideration other than cash. What it means? अभी तक हम लोगों ने 7 और 8 जितनी भी illustrations करी हैं, thereby the company was raising the debentures and in return the money was being transferred to its account. क्योंकि सारी एंट्रीज में I always recommend कि आपने बैंक से एंट्री पास करनी है, क्योंकि सारा सिस्टम डिजिटलाइज्ड है. कंपनी के अकाउंट में सीधा पैसा क्या होता है? ट्रांसफर होता है. It means कि ultimately we were getting the cash. When we were issuing the debentures, we as a company were issuing the debentures, the return we were getting in cash from the debenture holders, from the applicant side. Right? अब केस क्या है? I'm making a story here. For example, my company Sonia Limited raised debentures of ₹10 lakh. किसको रेज किए हैं? Not to the general public, to vendor. In return of a machine purchased, of a purchased machinery लिख देते हैं. और वेंडर का नाम है जी लिमिटेड. ठीक है जी. मींस जी लिमिटेड से मैंने एक मशीन कस्टमाइज करवाई, मैंने उससे मशीन खरीदी
और मैंने उसे बोला बदले में मैंने तेरे को कैश नहीं देना, तू मेरी कंपनी के डिबेंचर्स ले लेना. सो दिस इज अ बार्टर सिस्टम, चीज के बदले में चीज. So now we are going to pick this case, and he has framed different cases here. Sometimes he will be issuing the debentures to the vendor at par, then at premium. ये सारे cases करे हुए हैं. अगर आपको याद हो तो शेयर कैपिटल के चैप्टर में we were calculating number of debentures. तो यहाँ number of shares, और यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लगाया करेंगे number of debentures. तो number of debentures कैसे निकाला करेंगे? That is amount due to vendor. जैसे मैंने G Limited को कितना पैसा देना है, I will be writing it as a numerator. मैं उसे न्यूमिरेटर की फॉर्म में लिखूंगी और नीचे में डिवाइड क्या करूंगी with IP, which we call issue price, right? So what is the formula here? Amount due to vendor divided by IP. If he is issuing, my company is issuing the debentures at par, then IP, for example, it is of 100. तो आपने 100 से डिवाइड करना है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने डिसाइड किया कि मैंने उसे प्रीमियम पे इशू करना है तो 100 + 10, तो IP मेरा क्या हो जाएगा 100 + 10. अगर मैंने डिसाइड किया, सारा कुछ क्वेश्चन में लिखा होगा कि मैंने डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू करने हैं, देन आई विल बी डिडक्टिंग 100 में से 10, सो आई विल बी डिवाइडिंग इट विथ 90, राइट? सो IP मींस इशू प्राइस. If you issue it at par, it means कि फेस वैल्यू से ही डिवाइड करना है. अगर आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हो तो आपने फेस वैल्यू में प्रीमियम ऐड करके IP बनाना है. अगर आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो तो फेस वैल्यू में से डिस्काउंट माइनस करके आपने IP बनाना है. So this thing you have to be clear enough. And once the number of debenture comes, number of debentures are to be multiplied with the face value. तो आप एंट्री में कैसे करोगे? चलो पहले एंट्री देखते हैं. इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर अ परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश. पहली एंट्री होगी मेरी मशीन खरीदने की. जैसे मैंने अभी जो स्टोरी बनाई है, माय कंपनी परचेज्ड फ्रॉम G Limited अ मशीनरी ऑफ ₹10 लाख. तो पहले मैं मशीनरी खरीदूंगी, तो एंट्री क्या होगी? सी द जर्नल एंट्री व्हेन आई एम बाइंग द मशीनरी फ्रॉम G Limited. एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट, डेबिटेड एसेट आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन. मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, जिससे खरीदा है वो मेरा वेंडर है, सप्लायर है टू G Limited, एंड इट इज ऑफ 10 लाख. इफ इट इज इशूड एट पार, तो आप G Limited को कहते हो मैंने कैश नहीं देना तेरे को, तू मेरे से मेरी कंपनी के डिबेंचर्स ले ले. मतलब जिस दिन मैंने मशीनरी खरीदी है उस दिन से तू मेरी कंपनी का क्या बन जाएगा? डिबेंचर होल्डर. वी आर जस्ट हैंडिंग ओवर आवर डिबेंचर्स टू G Limited एंड पार. पहला केस है एट पार. आप एंट्री पास करेंगे G Limited अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिबेंचर. क्वेश्चन में लिखा होगा कितने परसेंटेज डिबेंचर है. सिंपल ये एंट्री 10 लाख से, ठीक है. लेकिन आई एम रिलेटेड विद द सेकेंड केस. अब सेकेंड केस में क्या होगा? मैंने उसे बोला है तेरे को डिबेंचर प्रीमियम पे इशू होंगे. इट मींस कि डिबेंचर्स को क्रेडिट करने के साथ साथ मेरे को प्रीमियम को भी क्रेडिट करना है. सो नाउ आई एम डाउटफुल कि मैं डिबेंचर, इतना तो श्योर है कि G Limited में 10 लाख ही जाना है. दिस L मींस लाख. G Limited में 10 लाख ही जाना है, लेकिन उस 10 लाख में से कितने डिबेंचर की फेस वैल्यू होगी और कितना सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होगा, दैट वी नीड टू कैलकुलेट. एंड फॉर दैट कैलकुलेशन वी हैव दिस फॉर्मूला. ठीक है. तो आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर्स आएंगे. नंबर ऑफ डिबेंचर्स को फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास डिबेंचर की अमाउंट आ जाएगी. नंबर ऑफ डिबेंचर्स को SPR से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की अमाउंट आ जाएगी. सो दिस वाज द सेकंड केस. नाउ कम टू द थर्ड केस. इतना क्लियर है कि G Limited को 10 लाख से ही डेबिट करना है, लेकिन क्योंकि मैंने डिस्काउंट पे देने हैं और आपको बताया हुआ सैटरडे भी, discount on issue is a loss for the company, so discount on issue of debentures will always to be debited. आपने G Limited के साथ साथ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स भी डेबिट करना है. अब डिबेंचर में कितना जाए और डिस्काउंट ऑन इशू में कितना जाए, फॉर दैट अगेन यू नीड टू अप्लाई दिस फॉर्मूला. दिस टाइम योर IP विल बी 90. सो 10 लाख इज टू बी डिवाइडेड विद 90. डेसिमल्स में आएगा. आमतौर पे डेसिमल्स का बहुत कम देता है. मान लो डेसिमल्स में भी आता है तो वी जस्ट राउंड इट ऑफ. ठीक है. एक दो क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे वो डेसिमल्स में आएगा तो हम उसे राउंड ऑफ करके नंबर ऑफ डिबेंचर्स क्या करते हैं कैलकुलेट, उसे फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके आप डिबेंचर्स में अमाउंट पुट कर देना, उसे डिस्काउंट पर शेयर से मल्टीप्लाई करके
आप डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू को फिल कर देना. सो दीज आर द फ्यू केसेस. उसके बाद स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं बार बार इसे रिलेट कर रही हूँ शेयर कैपिटल के साथ, शेयर कैपिटल के चैप्टर में we discuss the case of issue of shares to promoters and issue of shares to the underwriters. So same case we will be doing here, issue of debentures to the promoters of my company, which I will be calling incorporation expenses, and sometimes I will be issuing my debentures to the underwriters of my company, so that I will be calling underwriting commission. तो कुछ cases उसने उसके बनाए हैं. Let's proceed. लेकिन as it is solved, all the illustrations are solved in your book, I am directly picking your back exercise question. बैक एक्सरसाइज पे आओ, अनसॉल्व क्वेश्चन करते हैं बैक एक्सरसाइज से. परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश. लेट्स सी. यस स्टूडेंट, इट्स फ्रॉम 13th क्वेश्चन ऑनवर्ड, पेज नंबर 10.65. 13th ही करते हैं बिकॉज इट इज अ क्राइटेरिया ऑफ द बुक, दे ऑलवेज शिफ्ट फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. सो लेट्स do the simplest question, 13th question from your back exercise. Open the page number 10.65 everyone. 13th question from the back exercise. पढ़ो. Who is a vendor in this case? आपने किसकी कंपनी की बुक्स में करनी है जर्नल एंट्रीज, किससे कोई एसेट खरीदा है, ठीक है. Who sold the asset to you? And in return what you decided, आप उसे कैश में पेमेंट कर रहे हो कि डिबेंचर्स दे रहे हो. लेट्स सी. Joy Limited company bought a building for rupees 9 lakh and the consideration was paid by issuing 10% डिबेंचर और डिस्काउंट पे होंगे. ठीक है. जर्नल एंट्रीज करूंगी मैं इन द बुक्स ऑफ जॉय लिमिटेड, और जिससे खरीदी है बिल्डिंग उसका नाम नहीं दिया. जब नाम नहीं दिया तो वी विल बी कॉलिंग हिम और हर वेंडर. ठीक है. वी आर बाइंग द बिल्डिंग. पहली एंट्री क्या होगी, ऊपर लिखोगे जर्नल इन द बुक्स ऑफ जॉय लिमिटेड. पहली एंट्री काहे की होती है स्टूडेंट्स, बिल्डिंग खरीदने की. अभी आपको बताई एंट्री क्या होगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड 9 लाख की खरीदी है टू वेंडर, बिकॉज पर्सन फ्रॉम होम जॉय लिमिटेड बॉट द बिल्डिंग, उसका नाम क्वेश्चन में नहीं दे रखा. ठीक है. तो वी विल बी कॉलिंग हिम वेंडर. वेंडर्स अकाउंट यू कैन राइट पोस्ट ऑफ वीएस डाल के, राइट. वी बॉट इट फॉर 9 लाख. अब हमने उसे बोला कि तू मेरी बेइंग बिल्डिंग परचेज, नरेशन लिखना. हमने उसे बोला तू मेरी कंपनी के डिबेंचर्स लेना, और हर डिबेंचर कितने का है, 100 रुपए का. मैं 10% डिस्काउंट पे इशू करूंगा. इट मींस कि आईपी कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 100 - 10 विल बी योर आईपी. और नंबर ऑफ डिबेंचर्स का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट ड्यू टू वेंडर, एंड दैट इन दिस केस इज 9 लाख. 9 lakh divided by 90, you will get the number of debentures 10,000. ठीक है. अब मैंने अगली एंट्री क्या करनी है, लेट मी टेल यू हाउ द अमाउंट्स आर टू बी फेड हियर. क्योंकि डिबेंचर्स डिस्काउंट पे हैं, वेंडर के साथ डिस्काउंट और इशू भी डेबिट होना है, और यू कैन कॉल इट लॉस ऑन इशू. चैप्टर सारा जर्नल एंट्रीज का है, वो सिर्फ आंसर में नंबर ऑफ डिबेंचर्स ही देगा. जर्नल एंट्रीज हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे, देन ओनली यू कैन गेट कि आपने ठीक करी है कि गलत. ठीक, उसके आंसर्स नहीं है. डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, और नीचे कितने परसेंटेज डिबेंचर है, ही माइट हैव गिवन मी द परसेंटेज दैट आर 10%. जो 10% है ना, उसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है. वो भी टॉपिक है हमारे इस चैप्टर में, इंटरेस्ट डिबेंचर्स पे कैसे निकालना. वेंडर का डेड श्योर है कि आपने 9 लाख लिखना है ना, क्योंकि वेंडर जितने से क्रेडिट हुआ है उतने से ही डेबिट होना है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, मैं डिस्काउंट में कितना डालूं और 10% डिबेंचर्स में कितना डालूं. तो मैंने आपको बताया है नंबर ऑफ डिबेंचर्स आर टू बी मल्टीप्लाइड विद द फेस वैल्यू. डिबेंचर्स हमेशा क्रेडिट करने हैं अपने फेस वैल्यू से. दैट विल कम टू अस 10 लाख. 10 लाख के डिबेंचर्स, डिस्काउंट कितना, 10,000 के ऊपर 10 रुपए पर डिबेंचर डिस्काउंट है, मींस 1. सो
वैसे अगर वो मार्केट से खरीदने चाहता तो वही डिबेंचर उसे 10 लाख के मिलते, लेकिन हम लोगों ने उसे फेवर करी है क्योंकि हम लोगों ने उसे बिल्डिंग खरीदी और हमने अपनी ही कंपनी के डिबेंचर्स जो 10 लाख के थे मैंने उसे 9 लाख के दिए। व्हाई? बिकॉज ही इज आवर वेंडर एंड वी आर जस्ट ऑब्लाइजिंग हिम। और डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट मैंने किया? नंबर ऑफ डिबेंचर्स मैंने वहां पे निकाल लिए, उसे डिस्काउंट पर डिबेंचर से क्या किया? मल्टीप्लाई किया। यहां तक किसी को कुछ पूछना है? नरेशन में आपने नंबर ऑफ डिबेंचर्स लिख के आने हैं बेटे। हाँ, नीचे आंसर दिया हुआ 10,000 डिबेंचर। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग 10,000 डिबेंचर्स इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। 10,000 डिबेंचर्स जरूर बता के आना एग्जामिनर को। ऐसा क्वेश्चन 1 मार्क में भी आ सकता है, वेयर बाय ही कैन आस्क यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड टू द वेंडर्स, राइट? सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट 14th। देखो, इज इट एट डिस्काउंट और प्रीमियम? प्रमोटर को है, चलो पढ़ते हैं। 14th देखो, see 14th illustration from the back exercise everyone on the same page 10.65. Is it 10th chapter है? 10.65 पढ़ो स्टेटमेंट। Let's read. Who bought from whom? Amrit Limited was promoted by Amrit. So यहाँ पे प्रमोटर की बात करेगा, ठीक है? एंड भास्कर, दो प्रमोटर्स हैं विद एन ऑथोराइज कैपिटल। ये आपका शेयर कैपिटल का पॉइंट दे दिया कि आपने ऑथोराइज कैपिटल दोनों प्रमोटर्स ने कितनी डिसाइड करी थी? 1 करोड़ नहीं 10 लाख डिवाइडेड इनटू कंपनी के कितने शेयर्स थे? 1 लाख शेयर, 10 रुपए का एक। The company now decided to issue 10,006% debenture each, ₹100 each, to Bhaskar and Amrit each for their services in incorporating the company. तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने इशू कर रहे हैं? 1000 ईच है ना। इट मीन्स कि 1000 अमृत को गए, 1000 भास्कर को गए, और हर डिबेंचर कितने का है स्टूडेंट? 100 रुपए का। जब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो दिस कम्स टू मी 5 zeros 1 लाख। जब मैं इसको करती हूँ तो ये भी 1 लाख या, ठीक है, 2 लाख ही बनाया उसने, ठीक है। हाँ, मैंने अभी आपको बोल के हटी थी, देयर कैन बी द केस ऑफ प्रमोटर्स, देयर कैन बी द केस ऑफ अंडरराइटर्स। सो व्हेनेवर एनी कंपनी issues the debenture to the promoter, we call it incorporation expenses. तो हम एंट्री क्या करेंगे? Incorporation expenses account debited to promoters. promoters का नाम है तो लिख लीजिए, टू अमृत है ना, टू भास्कर। अमृत को दिया 1 लाख उसकी सर्विसेज का, और भास्कर को भी दिया 1 लाख। टोटल इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस कितने हुए? 2 लाख। अब मैंने क्या करना है अगली एंट्री में? अमृत और भास्कर को क्या करना है? डेबिट करना है, और उन्हें क्या दे देने हैं? अपनी कंपनी के डिबेंचर्स। इसने एक ही एंट्री में खत्म किया ना? वी विल नॉट, मैं अभी बुक में से आपको चेक करवाऊंगी। वी यूज्ड टू पास 2 एंट्रीज इन दिस केस, सो वी आर गोइंग टू पास द सेकंड एंट्री। पहले अमाउंट ड्यू करी है, बीइंग इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस ड्यू, ठीक है। अब दोनों को डेबिट करना है। अमृत डेबिट, भास्कर डेबिट टू कितने परसेंट डिबेंचर्स हैं भाई? 6% डिबेंचर्स टू 6% डिबेंचर्स। सो वी आर ओवरऑल गिविंग 2 लाख डिबेंचर्स। 1 लाख अमृत को दे दिए और 1 लाख इसको दे दिए भास्कर। तो बुक में एक एंट्री करी है। एक एंट्री क्यों करी है? क्योंकि इस एंट्री में अमृत और भास्कर क्या हुए हैं? क्रेडिट। इस एंट्री में क्या हुए? डेबिट। ही जस्ट कैंसल्ड इट, सो दैट्स व्हाई ही पास्ड एंट्री। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस को वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का नाम भी देता है, 2% डिबेंचर्स। दैट्स व्हाई ही मर्ज्ड द 2 एंट्रीज इनटू 1। अब मेरे को आपको पीछे दिखाना है कि उसने, आपकी बुक वाले ने आपको 2 एंट्रीज ही बताई हैं। सो लेट्स कम टू द बैक पेजेस। This is on page number 10.19. Come to that page. देखो पहली एंट्री यही लिखी है ना, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, पेज नंबर 10.19, टॉप ऑफ द पेज। Incorporation expenses or preliminary expenses account debited to promoters, then promoters account debited to percentage debenture. मैंने भी तो यही किया, ठीक है। So you can pass 2 entries, you can pass even 1 entry. Okay.
बेटे उसने 1 एंट्री क्यों पास करी है? क्योंकि उसने क्वेश्चन में लिखा पास आ जर्नल एंट्री. ही डिडंट राइट द वर्ड एंट्रीज, ही जस्ट रोट अ वर्ड जर्नल एंट्री, सो दैट्स व्हाई मर्ज्ड एंट्री. ठीक है, तो हम भी अगर वो क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पूछता है तो हम प्रमोटर्स का नाम बीच में से स्किप कर देंगे, सिंपली एंट्री क्या करेंगे, इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिवेंचर. ठीक है, तो आपको भी स्टेटमेंट ध्यान से वहां पे पढ़नी है. नाउ आई रेड द स्टेटमेंट केयरफुली. व्हाई ही पास्ड आ एंट्री? बिकॉज ही आस्क्ड पास आ जर्नल एंट्री, राइट. 15th देखो बेटे, 15th question from the back exercise. This was 14th. Come at 15th question from your back exercise. पढ़ो स्टेटमेंट. पढ़ो जी 15. बी लिमिटेड इशूड 9% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच. 100 रुपए का एक है, 9% है, 20 रुपए प्रीमियम पे है. ठीक है, किसको इशू करा है? वेंडर को, जिससे हम लोगों ने प्लांट खरीदा और प्लांट 6 लाख का था. फिर उसने एक ही जर्नल एंट्री पूछी है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री. पहले मैं 2 एंट्रीज करवाऊंगी आपको, फिर मैं मर्ज करके भी बताऊंगी कैसे मर्ज हो सकती है. ठीक है, 6 लाख का प्लांट खरीदा है, एंट्री पहली होनी चाहिए थी प्लांट टू वेंडर, पहले प्लांट खरीदने की. ठीक है, बीइंग प्लांट परचेज्ड, दैट इज 6 लाख. फिर आपने उसे प्रीमियम पे डिवेंचर इशू करे हैं. इट मींस कि मेरे को नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालना है. यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ डिवेंचर्स का? नंबर ऑफ डिवेंचर्स इज इक्वल टू अमाउंट ड्यू to vendor, that is 6 lakh here, divided by IP, and that is 120. So how many number of debentures we are calculating? That is 5000. ठीक है, अब मेरे को अगली एंट्री में आपको बताना है कि प्रीमियम में कितना जाएगा और 6% डिबेंचर्स है कि 9% है. 9% डिबेंचर्स में कितना जाएगा. अगली एंट्री हम क्या करते हैं, वेंडर अकाउंट डेबिटेड, premium is always being credited, debentures are also always being credited, being a non-current liability, right? To 9% debentures, to SPR, which we call security premium reserve. Done. So vendor को कितना देना है स्टूडेंट? 6 लाख. डिबेंचर्स में कितना जाएगा? 5000 इंटू फेस वैल्यू, क्योंकि डिबेंचर्स हमेशा फेस वैल्यू से ही क्रेडिट होने हैं. सो 5000 इंटू 100, दैट कम्स टू मी 5 लाख. प्रीमियम में वैसे तो डिफरेंस से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आई कैन टेल यू द अमाउंट हाउ वी हैव कैलकुलेटेड. 5000 इंटू प्रीमियम पर शेयर, दैट इज 20, सो इट कम्स टू मी ऑब्वियसली 1 लाख. आपकी बुक वाला क्या रिकमेंड करता है अगर सिंगल एंट्री करनी है? वेंडर पहली एंट्री में क्या हुआ है? क्रेडिट. दूसरी में क्या हुआ है? डेबिट. वेंडर कैंसिल हो सकता है, सिंपल एंट्री आ सकती है, प्लांट अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिबेंचर टू SPR. ठीक है, वैसे वो जर्नल एंट्रीज ही पूछेगा, लेकिन फॉर योर नॉलेज आई एम टेलिंग यू, व्हेन अ सिंगल एंट्री ही आस्क, तो यू कैन पास द कंबाइंड एंट्री, राइट. आगे चलते हैं. यस, समटाइम्स व्हाट हैपन, लेट मी डिस्कस दैट केस. वो भी हमने शेयर कैपिटल में किया होता है. कई बार जो बायर कंपनी है वो वेंडर को बोलती है कुछ पेमेंट मेरे से कैश में ले लेना, कुछ का ड्राफ्ट ले लेना या चेक ले लेना. चाहे ड्राफ्ट वर्ड लिखा हो चाहे चेक लिखा हो, आपने टू बैंक में ही डालना है. और कुछ का मैं बिल एक्सेप्ट कर लूंगा, वो अमाउंट आप डालोगे टू BP, बिकॉज द बायर कंपनी इज एक्सेप्टिंग द बिल. इट मीन्स कि उस केस में बायर कंपनी ड्रॉई है, और जब ड्रॉई बिल एक्सेप्ट करता है तो हम बिल्स पेबल उसकी बुक्स में क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं. सो द वे ही विल बी गिविंग यू द इंफॉर्मेशन इन द सेम मैनर विद डिबेंचर्स, हम लोग टू कैश लिख देंगे, टू बैंक लिख देंगे, टू BP लिख देंगे. तो मैक्सिमम यही केसेस आएंगे. चेक का कभी वो नाम क्या लिख देगा? ड्राफ्ट. सो ड्राफ्ट इज ऑल्सो बीइंग मेड फ्रॉम द बैंक, बैंक से बनवाया जाता है. मेरा बैंक का बैलेंस ही कम होता है, इसलिए टू बैंक की एंट्री आएगी. चेक हो या बैंक ड्राफ्ट हो, दोनों की ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विल रिमेन सेम. सो नाउ कम एट 16th क्वेश्चन फ्रॉम योर बैक एक्सरसाइज. पढ़ो स्टेटमेंट. 16th question from your back exercise. Let's do it. Ananya Limited purchased an established business. You know,
ये भी हम लोगों ने शेयर कैपिटल में किया होता है। अभी तक जो इलस्ट्रेशंस करी हैं, यू आर जस्ट बाइंग वन एसेट। Sometimes what happen, you can buy somebody's running business. आप किसी का चलता चलाता बिजनेस खरीदते हो. When you buy somebody's running business, all assets you take over and all liabilities also are being taken by you. So in that case, sundry assets are to be debited, sundry liabilities are to be credited. जितना आपका पीसी डिसाइड हुआ है वो वेंडर के अकाउंट में डाल देना. Then you can have the goodwill balancing figure if you are paying in excess, and if you are paying in less, then the capital reserve can be the balancing figure. ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि नहीं. अगर क्रेडिट साइड बड़ी आएगी एंट्री की तो गुडविल बैलेंसिंग फिगर होगी डेबिट में. अगर डेबिट साइड बड़ी होगी तो कैपिटल रिजर्व क्रेडिट साइड और क्रेडिट पार्ट ऑफ जर्नल एंट्री में बैलेंसिंग फिगर होगा. ये भी किया होता है हम लोगों ने शेयर कैपिटल में. 2 लाख में बिजनेस खरीदा, 65,000 ऐसा कुछ नहीं, एसेट लायबिलिटीज दी नहीं है. 65,000 का उसे बोला चेक ले ले. किससे खरीदा वो भी नहीं ना नाम बताया. सो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर. 2 लाख लायबिलिटीज नहीं दी तो ना से. बिजनेस को क्या लिखता है मेरे को 1 मिनट देखना है. एस्टैब्लिश बिजनेस जब खरीदता है तब वर्डिंग क्या लिखता है. हाँ सन्ड्री एसेट्स ही है. परचेज ऑफ व्हेन एसेट्स आर परचेज्ड. When established business is being purchased तो क्या लिखना है. ऐसा कुछ मेंशन नहीं ना किया. सारे एसेट्स वाला केस ही दिया हुआ है. या एसेट का नाम दे रखा है या एसेट्स और लायबिलिटीज इकट्ठी दे रखी है ना. तो कोई भी ऐसा केस नहीं है. वी कैन कॉल इट बिजनेस परचेज करने की एंट्री लिख सकते हैं भाई. सन्ड्री एसेट्स मान के चलेंगे लायबिलिटीज नहीं है टू वेंडर 2 लाख में. और एक एंट्री भी कर सकते हैं. वेंडर को क्या बोला, अगली एंट्री बस कर दो. वेंडर अकाउंट डेबिटेड, उसे बोला चेक ले ले टू बैंक. 2 लाख में से चेक दिया 65,000 का. देखना जरा अगली एंट्री में कैसे करूंगी. वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक. वेंडर को देना कितना था 2 लाख. हमने अभी तक दिया है चेक 65,000 का. यू नो हाउ मच अमाउंट इज लेफ्ट. अमाउंट ड्यू 135. कहता बाकियों के हम डिबेंचर्स इशू करेंगे रिमेनिंग अमाउंट के लिए, और वो डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू होंगे और हर डिबेंचर 100 रुपए का है. 100 में से 10 रुपए डिस्काउंट जब मैंने माइनस किया तो आईपी आया आपका 90. इट मींस कि मैंने इसे 90 से डिवाइड करना है. हाँ, दैट विल कम टू मी 1500 डिबेंचर्स. तो मैंने अब क्या करना है, 2 कितने परसेंट डिबेंचर्स हैं 9%. 9% डिबेंचर्स. और डिस्काउंट क्योंकि एंट्री में डेबिट होता है तो यहाँ पे स्पेस छोड़ लेना पहले आप. डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स. डिबेंचर्स में गया 1500 into 100 क्योंकि नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमने निकाले वो 1.5 लाख आया. और ये आया 1500 into 10 दैट इज 15,000. देखो मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है. 2 लाख में 15,000 ऐड किया तो डेबिट पार्ट का टोटल 2,15,000 आया. जब मैंने इधर 65,000 में 1.5 लाख ऐड किया तो भी मेरा टोटल 2,15,000 आया. आप चाहो तो एक एंट्री भी कर सकते हो. वेंडर अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड. ये चेक है टू बैंक 2% डिबेंचर्स. ठीक है. अगले केसेस सारे उसने इकट्ठे डाले हैं. 17th यू कैन सी योरसेल्फ. मैं 18th करवाती हूँ रोमी लिमिटेड वाला. जब रोमी लिमिटेड ने कपिल एंटरप्राइजेस के एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों टेक ओवर कर ली. सो हियर बाय वी विल ईदर बी गेटिंग द गुडविल बैलेंसिंग फिगर और वी विल बी हैविंग द कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर. लेट्स प्रोसीड इन 18th क्वेश्चन फ्रॉम बैक एक्सरसाइज. किसकी बुक्स में कर रहे हैं, रोमी की. जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रोमी लिमिटेड. कपिल एंटरप्राइजेस के एसेट्स और लायबिलिटीज रोमी लिमिटेड ने टेक ओवर करे हैं.
सो क्योंकि एसेट्स के इंडिविजुअली नाम नहीं दे रखे, कंबाइंड एसेट्स हैं, कंबाइंड एसेट्स को वी विल बी कॉलिंग सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री लायबिलिटीज। वैसे सन्ड्री लायबिलिटीज का उसने खुद नाम दे रखा है क्रेडिटर्स आई थिंक, सो आई विल बी कॉलिंग क्रेडिटर्स ओनली। ठीक है, एसेट्स आ रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्रेडिटर्स क्योंकि लायबिलिटी है, लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती हैं। सन्ड्री एसेट्स कितने के खरीदे हैं बेटा जी? 20 लाख के। क्रेडिटर्स कितने के लिए हैं? हाँ देखो, ये 20 के बाद ही कॉमा पढ़ना। क्रेडिटर्स कितने के लिए हैं उसने? 2 लाख के। और कपिल एंटरप्राइज को हमने क्या बोला? परचेज कंसिडरेशन। पहले तो सुनो, यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 20 लाख, और क्योंकि उसने खुद परचेज कंसिडरेशन नहीं दी तो यहाँ पे गुडविल और कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगी। वो तब बैलेंसिंग फिगर आएगी जब आप वो परचेज कंसिडरेशन वो खुद देता है। तो यहाँ पे मैं खुद कपिल एंटरप्राइजेस का नाम लिखूंगी। कितने में समझौता हुआ होगा? 18 लाख, क्योंकि दोनों का डिफरेंस ही कितना आ रहा है? 18 लाख। ठीक है, ये सिंपल केस उसने डाला। अब हम लोगों ने कपिल एंटरप्राइज को क्या बोला कि तू हमारी कंपनी के डिबेंचर्स ले लेना एंड वी विल बी इशूइंग दीस डिबेंचर्स टू यू एट 10% प्रीमियम। सो फॉर्मूला लगाओ, अमाउंट ड्यू टू कपिल डिवाइडेड बाय आईपी व्हिच कम्स टू मी 100 minus 10. So it comes to me 18 लाख है ना, 20,000, राइट। तो क्या करेंगे हम? कपिल को क्या बोलेंगे? हमारी कंपनी के डिबेंचर्स ले ले, कपिल एंटरप्राइजेस। डिस्काउंट ऑन इशू क्या होगा? डेबिट होगा टू जितने परसेंट भी डिबेंचर हैं दैट आर टू बी क्रेडिटेड। तो मैंने कैसे निकाला? 20,000 into 100, that comes to me 20 lakh, right? And after that I told you the formula how the discount is to be calculated. Discount calculate करने के लिए again number of debentures I will be keeping into consideration and that is to be multiplied with discount per share, that comes to me 2 lakh. So obviously कपिल में कितना जाएगा? 18 lakh. चेक करो, आंसर यही दे रखा है। Yes, number of debentures are 20,000. So this is a simple case. Now see you in your 4th and 5th period. 4th we will be doing business studies, 5th we will be doing accountancy.